Assalamu alaikum class, welcome back to the class. I hope you people are doing great and fine. Ibrahim, can you rejoin the class because I'm having a problem? Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम, आप एक दफ़ा क्लास जो है ना वो लीव करें और दोबारा ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ आपकी पिक्चर शो हो रही है मुझे अपने स्क्रीन के साथ। काइंडली। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सारे? Okay, class. So thank you so much for the greetings. Please switch off your cameras and your mics so that it may not produce any disturbance and inconvenience. Walaikum assalam, Tayyiba, Fatima, Hulia, Ikra. Okay, ji, welcome, Tayyiba. I hope we people have a very pleasant and nice time. जी recording हो रही है जी Manha, thank you for reminding. Okay class, so today we are going to start learning and studying about the types of adjectives. We have तो पहले basically थोड़ी देर फ्री yesterday में रखिए discussed about बाहर। the definition of adjectives, the sequence of adjectives in a sentence, and then we have went uh, through the basically different degrees of adjective. Today we are going to discuss the types of the adjectives and we are going to like complete them all today. So the very first type of adjective is called as adjective of quality, and it is also called as adjective descriptive adjective. So most of the paper nowadays they give you an MCQ related to descriptive adjective or quality of a noun or pronoun, and most of the time the option given is descriptive adjective. So students get confused कि now what is descriptive adjective. Your descriptive adjective is equal to descriptive adjective or adjective of quality. They both are same things basically. We will be shortly going through the definition. It tells you about the in a very easy words, good, quality, और फ्लॉ मीन्स एनी टाइप ऑफ लाइक डीमेरिट। ठीक है, उसमें खामी भी होती है, उसमें खूबी भी होती है। ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन जिसमें आपके पास आ जाते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट लाहौर is a large city or he is a naughty boy. So in both of these sentences, we have the examples of adjective of quality or descriptive adjective. In the first one,
Large is the example, and in the second one, naughty is the example. How? Why they are the examples? Because this large is describing your city. It is the quality of the city. It is the quality of Lahore. So that's why we are calling it as an adjective of quality, or as a descriptive adjective. In the second sentence, naughty is something basically, आप देखिए naughty कुछ लोगों के लिए it is a खूबी, कुछ लोगों के लिए it is a हानि. ठीक है, जब आपको किसी चीज का नॉटी, वो बच्चों का शरारतें अच्छी नहीं लग रही होती, सो इट कैन बी योर मेरिट, इट कैन बी योर डीमेरिट. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज डिस्क्राइबिंग योर बॉय. सो दिस now becomes the example of adjective of quality or descriptive adjective. Got it? ठीक है class, so let me go through the sentences now. ठीक है, I will be saying the sentences. I am not going to write it on the whiteboard. You people are going to tell me the adjective of quality in those sentences. Along with that, I will be, yes, ये MCQs में आते हैं. I will be announcing the name of the student who tells the answer first. ठीक है. ओके मनहा, बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मैंने बताया है कि ये वो तमाम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपके नाउन प्रोनाउन, उसमें कोई पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, उसकी उनकी अगर क्वालिटी आपको बताते हैं, सो दोज एडजेक्टिव्स आर द एग्जांपल्स आर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल इन दिस सेंटेंस लार्ज इज टेलिंग यू अबाउट सिटी. ठीक है, इट इज डिस्क्राइबिंग योर सिटी, सो लार्ज इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, ओके, लेट मी से सम सेंटेंसेस. Okay class, so the first sentence is she wore a beautiful dress. ओके, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा आई विल बी अनाउंसिंग हिज और हर नेम. ठीक है, सो आई गॉट द आंसर ऑफ मनहा फर्स्ट. सो ओके, ब्यूटीफुल इज द आंसर. द सेकंड सेंटेंस is Ali is a brave boy. ब्रेव ये किसका है जी? इकरा. ओके, इकरा इज द विनर फॉर दिस सेंटेंस. ठीक है जी. द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज. स्मॉल ये किसका है जी? लेट मी गो थ्रू. एक तो आप लोग स्पीड ऑफ लाइट को भी आज तो आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया है क्लास. क्या कर रहे हैं आप लोग? ये ब्रेव आंसर फातिमा का सबसे पहले आया था आंसर हमारे पास जी. एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव is this is a delicious meal. Ikra is the winner for this sentence. ठीक है, so delicious is the adjective of quality or the example of descriptive adjective in this sentence. Got it class? Should we move towards the next one? Okay. इब्राहिम, लेकिन आंसर्स आपके बाद में आए हैं, ऐसे तो होता है फिर. That's very easy adjective of quantity. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में. द फर्स्ट वन इज डेफिनेट वन. ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर.
So who is going to tell me the easiest meaning of quantity? What does it mean? समथिंग वी कैन काउंट सच एज शेयर्स टेबल्स, ठीक है मैम, नंबर, तादाद, ठीक है, ठीक है। और दिस कैन बी द आल्सो द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी, मिकदार, ठीक है। सो बेसिकली इफ वी आर टेलिंग अबाउट एनीथिंग, एनी नाउन, ठीक है, एंड वी आर टेलिंग अबाउट देम के लाइक उसकी कितनी क्वांटिटी है, आसान अल्फाज में अगर हम नंबर पे जाएं कि जी हमारे पास एक बुक है, हमारे पास वी हैव टू बुक्स, वी हैव थ्री बुक्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो मेनी में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं वी डू नॉट नो, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है, वी नो दैट वी कैन काउंट फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली all those three types of adjectives, they tell you or they answer you about how much, ठीक है, the shortest definition how much or how many, ठीक है। इसमें आपके नाउन्स को हम देखते हैं कि जिस भी नाउन की हम बात करते हैं, दे कैन बी योर प्लेसेस, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो अब क्लास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ना, ये बेसिकली इनका हेड है, ठीक है। अब क्लास फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट, जस्ट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, इफ आई से दैट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो ये क्वांटिटी का तो है, ठीक है, इट इज एग्जांपल ऑफ योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये आपके पास indefinite adjective of number हो जाएगा because you cannot count the few friends. Either Manha is included, either Ikra is included, either Fatma is included, Sunera is included, Ibrahim is included. We do not know about the specific number of those friends. ठीक है, जो हमें स्पेसिफिक नहीं है, जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो एडजेक्टिव आपका आ जाएगा जी indefinite adjective of number. But if I say that I have three board markers right at the moment, ठीक है, so you basically can count these three markers, ठीक है, डेफिनेट है कि जी मैम के पास थ्री बोर्ड मार्कर्स हैं, ठीक है, डेफिनेट है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये जो थ्री है नाउ इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल्स पर हम जाते हैं, लेकिन क्लास अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि हमें पेपर में इस तरह का सेंटेंस गिवन हो कि जी आई हैव थ्री बोर्ड मार्कर्स और ऑप्शंस गिवन हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो आपको डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ऑप्शन गिवन होगा, अगर ये नहीं गिवन होगा तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ऑप्शन गिवन होगा। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस है और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस है। गॉट इट? So let me tell you the definitions again shortly. Adjective of quantity tells you about the quantity of any noun. That noun can include your person, place, or thing. ठीक है, it can be your definite or indefinite. ठीक है, definite and indefinite adjective of numbers are included in adjective of quantity. But if we specifically talk about the types of adjective of quantity, so definite adjective of number talks about your definite number, the number which we count. For example, the hand has five fingers. We can count them. But on the other hand, indefinite adjective of number are basically the adjectives of number about which we are not specific. For example, there are many leaves, ठीक है, on the ground. So we are not specific about the basically number of leaves. So that would become the example of indefinite adjective of number. समझ आ गई क्लास? अली हैज फाइव पेंसिल्स, जी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वाला एस्पेक्ट भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो मुझे जल्दी से आप फ्यू का एग्जांपल्स इन अ सेंटेंस फॉर्म में बताएं, फिर हम सेंटेंसेस पर जाते हैं।
Okay, yes, Taiba, you can say that. Okay, humble is very humble. ठीक है, good. I have many friends. She have ठीक है, सुनहरा. ठीक है. Okay, okay, class. So going for the sentences, you need to listen to the sentences. The first sentence is the first chapter of this book is very interesting. Okay, Manha is the winner, and the answer is first. Sorry, definite, of course. अच्छा जी, sentence बहुत ध्यान से सुनना है class. This book is very interesting. This book is very interesting. This book is very interesting. Okay, Ikra is the winner. So all those students who are saying and going for indefinite class में अगर ये कहूँ आप लोगों को कि ये जो this board is very smooth, पॉइंट आउट कर रही हूँ ना एक ही बोर्ड की तरफ, this board is very smooth, और this board marker writes well, तो ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट हो जाएगा? डेफिनेट. ठीक है, ये डेफिनेट होगा. मैं कहूँ कि ही लिव्स इन दैट हाउस. हम किसी को हम हमें कोई एड्रेस पता करना होता है, हम कहते हैं वो आगे से बंदा हमें कह रहा होता है कि जी वो वहां जो है ना उस घर के पास, ही लिव्स इन दैट हाउस. तो दैट इज आल्सो स्पेसिफिक. स्पेसिफिक ना, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अच्छा जी हमने उस घर की तरफ जाना है, एक स्पेसिफिक घर होता है, हमें पता होता है. तो वो जो दैट है, इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर डेफिनेट एडजेक्टिव. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज some people were waiting outside. Okay, Ikra is the winner for this sentence again. ठीक है, and the last sentence for these types of adjective is many students attended the lecture. Okay, Humble and Fatma are the winners for this sentence. ठीक है. Okay, class, so should we move towards the next one? ठीक है जी. Okay, class, the next one is proper adjective. Again, the shortest definition or introduction of proper adjective is that it shows you the origin or nationality. You people must have heard about proper noun. अब आप लोग सोच रहे होंगे ओ ये proper adjective कहाँ से आ गया? ठीक है, basically they have a relationship. Let me give you the example. If I say that जी Adila lives in Canada. ओहो क्या बात है, चलिए ना जाऊँ क्लास में कभी. So what do you people think के what is the example of Canada here? No, leave this name, leave this name. I'm just asking about Canada. But what type of noun it is? Proper noun. But now if I say that Adila likes नाउ, बेसिकली ये जो आपकी नेशनैलिटी है वो आपकी कनाडा कनाडा से फॉर्म हुई हुई है. अब इन द सेकेंड सेंटेंस दिस कैनेडियन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ योर प्रॉपर नाउन क्लास. नाउ ये एक नेशनैलिटी बन गई है. ठीक है. अब इस सेंटेंस में आपके पास तो फर्स्ट में कैनेडा था, दैट वाज बेसिकली योर प्रॉपर नाउन. ठीक है. अब सेकेंड सेंटेंस में ये आपके पास प्रॉपर नाउन नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग योर फूड ना,
कि ये फूड है, और सेकंड इसकी रीजन ये है कि ये आपको नेशनैलिटी के बारे में बता रहा है या ओरिजिन के बारे में बता रहा है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसका, अच्छा इकरा का ले लेते हैं। इकरा, आपको हम इंडिया पहुंचाते हैं, ठीक है। इकरा लिव्स इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर नाउन, बट इफ आई से दैट शी लाइक्स इंडियन सिल्क, तो अब इसमें इंडियन जो है ना, दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, नॉट प्रॉपर नाउन। जी तैयबा, सो ये आपके पास कैनेडियन जो है ना वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। रेडी फॉर द सेंटेंसेस क्लास? Let me drink a glass of water. Okay, humble. So proper nouns are those nouns that shows a reaction, relation. ठीक है. Somehow, humble. What is your real name, by the way, if I may ask? अच्छा जी, humble. Okay, very humble, very humble. Muhammad humble. Oh, nice, very nice. You belong to Pakistan, like, or you live somewhere else? Okay. So it's like, what's the meaning of your name? Kind, gentle. So this name comes from English language or Urdu language? Arabic. Okay, interesting by the way. Okay, class. So sentences. The first sentence is she reads American novels. Okay, ji, Ikra is the winner for this sentence. ठीक है, American is the answer. ये सारों के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? इकरा, जुनैरा, मनहा और फातिमा के आंसर आए हैं, बाकी किधर हैं? तो नहीं रहे कहीं आप लोग? ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो तैयबा, वेयर आर यू? यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही लव्स चाइनीज फूड। अच्छा जी, ये इकरा, इकरा स्पीड आपकी बहुत तेज है बेटा। ठीक है, इकरा, इकरा इज द विनर। एंड द लास्ट सेंटेंस इज the Islamic festival of Eid is celebrated everywhere. Okay, so Ikra is again the winner, and the answer is Islamic. Okay, class, so got this type. Should we move towards the next one? ठीक है जी. Class, the next one is your basically exclamatory adjectives. Sorry. Okay, exclamatory adjectives. So they are basically formed and used. Again, some writing speed. जी फातिमा, ठीक है। इकरा जी, फातिमा, इकरा, आप फातिमा के क्वेश्चन को एंटरटेन करना चाहेंगी? शी इज आस्किंग अबाउट योर टाइपिंग स्पीड। ये तो क्लास बहुत इजी है, ये तो जो ज्यादा मोबाइल यूज करता है तो वो आप लोग समझ जाएं फिर। ठीक है, इकरा, बहुत बुरी बात है बेटा, बहुत बुरी बात। ओके, आई वाज किडिंग। अच्छा इब्राहिम, अब ये क्वेश्चन भी अब आप, ठीक है जी। इकरा ने आपका आंसर क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब शी वांट्स शी कैन आंसर यू।
Okay, so class, she is saying that basically she belongs to IT, so that's why her typing speed is fast. ठीक है? Okay, class, so exclamatory adjectives, they are used in exclamatory sentences, ठीक है? So the short definition, introduction is that they are used in exclamatory adjectives. ठीक है? For example, if the sentence is what beautiful dress, इब्राहिम आपको कैसे पता? What a nice work, how foolish is he? क्लास, ऑफ बेसिकली ये जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, इन्हीं में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स यूज्ड होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव स्पेसिफिक हैं वो सिर्फ एक ही है, और वो है व्हाट। ठीक है, लेकिन कभी कभार हाउ की भी यूसेज हो जाती है। लेकिन अभी आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स को अपने इंटरजेक्शंस के साथ जो है ना कंफ्यूज नहीं करना। इंटरजेक्शंस आर समथिंग एल्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर समथिंग एल्स। आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये इसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में कर दें, एलास आई हैव lost my father। ठीक है, this is not the example of your exclamatory adjective, it is the example of your interjection, specific like emotions and expressions हैं। लेकिन जो आपके exclamatory adjectives हैं वो सिर्फ आपके दो हैं, और वो हैं what और how। ठीक है, और वो आपके exclamatory sentences में mostly used होते हैं। Got it? Any examples from your side? What or how? Yes। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें ये लास्ट वाला भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि उसमें व्हाट और हाउ की यूसेज हो। ठीक है, व्हाट अ लेडी इज, शी इज, शी इज, हाउ प्रिटी इज शी। ठीक है, शी इज। जी, बाकी भी बताएं। नो, बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो मेन एस्पेक्ट होता है ना, दैट इज के दे यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाँ, बट द क्वेश्चन है कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके सेंटेंस के लास्ट में हो। जैसे इस सेंटेंस में मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में यूज नहीं किया, ठीक है, बट अगर आपका लास्ट में यूज नहीं होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, सो इट इज ऑब्वियस कि फिर आपका इंटरजेक्शन के बाद जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। But exclamatory sentences, like, they always contain the exclamatory mark, either in the start or either in the end, at the end। ओके आमना, सो आपके चैप्टर 1, 2 और 5 में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने ना, कोई आपको ग्रामर का पोर्शन तो गिवन होगा, उसमें से अगर आ सकता है तो आपका कंप्रिहेंशन आ सकता है। सो द लीस्ट आई कैन गाइड यू इज दैट कि आप चैप्टर्स की रीडिंग करें और उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको गो थ्रू करें। ठीक है। ठीक है जी सुनहरा, इस टाइप के सेंटेंसेस पर हम नहीं चाहते, हम नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं बिकॉज दे आर इजी। ठीक है, सो आमना उसमें क्या ग्रामर है, हम कर चुके हैं वो कि नहीं, आपने देखा है? ठीक है, यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली अगर आपको समझ नहीं आती ग्रामर की। बट चैप्टर्स में से आपका कंप्रिहेंशन के अलावा भूल जाए आपके, उसमें से कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, नथिंग। आप सिर्फ रीडिंग करें और समरी लिखें ना आप 3 चैप्टर्स की। Okay, okay, class. So, Amna, if you find any complication or any problem, you can text me personally. I can guide you.
because you are having your paper. Plus, the next type is emphasizing adjective emphasize. To emphasize, emphasize means to stress basically. ठीक है, आप किसी भी चीज पर स्ट्रेस करते हो इन ऑर्डर टू शो इम्पोर्टेंस. हाँ जी, बोर्ड के पेपर्स में भी आपका बुक से कुछ भी नहीं आएगा. बुक से सिर्फ आपकी पॉइंट्स आएंगी, और अगर चैप्टर्स होंगे तो लाइक आई डोंट थिंक सो कि आपकी, हाँ आपकी बुक सॉरी 10th की हैं आप लोग, ठीक है. तो लाइक दिस टाइम लाइक आई एम 85% श्योर कि आप लोगों का जो कम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ होगा वो आपकी बुक से ही आएगा. इसके अलावा बुक से आपका कोई क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी नहीं आना. ठीक है. क्लास एग्जाम्पल्स, दिस इज द very book that I needed. She is my own sister. He admitted the actual mistake. Plus, try to translate these sentences into Urdu. देखिए, emphasize in order to show importance. द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द वेरी बुक दैट आई नीडेड. अब इसमें जो वेरी की यूसेज है, ये वो वाला वेरी नहीं है कि जी शी हैज वेरी ब्यूटीफुल आईज. ठीक है, ही हैज वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी. ठीक है, दैट वेरी इज समथिंग एल्स. इस सेंटेंस में जो वेरी की यूसेज है, ये बेसिकली आपको एम्फसाइज कर रहे हैं बुक को. ठीक है, कि दिस इज द वेरी बुक दैट आई नीडेड, कि यही वो बुक है जो मुझे जरूरत थी, है जो मुझे चाहिए. So in this sentence, very is used as an emphasizing adjective. The next one is she is my own sister. So basically in this sentence, we are emphasizing over the fact that she is my own sister. So इस sentence में जो आपका emphasizing adjective है, that is own. And what about the third sentence? जी, दे बेसिकली हाईलाइट द मेन नाउन, इसके साथ साथ ट्राई टू ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू. ठीक है, एम्फसाइज करने के लिए. मैम दे हाईलाइट, ठीक है. नो, एडमिटेड इज नॉट द एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हियर. एक्चुअल, उसने अपनी जो असल वाली मिस्टेक थी वो बेसिकली एडमिट की. ठीक है, एडमिटेड इज अ मेन वर्ब हियर. ठीक है. ओके, सो रेडी फॉर द सेंटेंसेस क्लास. इब्राहिम चाय को बोलें कि थोड़ा सा वेट करें आज. ठीक है, बात करें उनसे, क्या पता मान जाए वो. Okay, so the first sentence is he made the same mistake. Okay, Zonera is the winner. You should believe in your own eyes. अच्छा जी मन, हाँ क्या बात है, शुड. क्या बात है जी, क्या बात है. नजर ना लगी जी मन, हाँ आपको. ठीक है, नजर लग गई तो फिर क्या होगा. दिस द आंसर वाज ओन. ठीक है, और ये किसने सही बताया था सबसे पहले? इकरा. Okay, the third sentence is, let me think. Okay.
I met the same teacher who taught my father. Okay, Manha and Ikra are the winners for this sentence, same. And the last sentence for this type of adjective is that was the very day I will never forget. अच्छा जी, ये कौन है जी? स्पेलिंग्स देखें जी वेरी के, सबर करें सबर। ये कौन है जी? मनहा। आमना। क्या बात है, स्पेलिंग्स! ओहो, ये स्पेलिंग्स आप लोगों ने, ओके। दिस इज द वेरी 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 वाज द आंसर क्लास। यही वो एक दिन है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। ओके, वन मोर, ओके। The actual reason for his absence is still unknown. के मनहा, नो नो नो, इकरा इज द विनर। ठीक है बेटा। याकूब, आपको समझ आ गई है? आपका क्वेश्चन, आपका आंसर रॉन्ग था। जल्दी से बताएं। अच्छा क्लास, आई एम शेयरिंग अनदर लिंक, यू पीपल हैव टू ज्वाइन इट देयर एंड देन। ठीक है, क्योंकि आज हम सारे टाइप्स को कवर करने वाले हैं। गॉट इट?